Okay, so Assalamu alaikum. Welcome to the special guest speaker session. Today's session is focused on our previous intern, Miss Hiba, and she will be discussing some important prospects regarding the internship and your, career regarding career goals. Okay, so first of all, I'm really grateful to Miss Hiba for joining us today and becoming part of this session. And it's been an amazing journey because last year she was our intern and she was also attending sessions like you guys. But now she's here as a guest speaker. So that is something really to be proud of, and I'm really grateful to her for taking out time. And one more thing, you can ask her any questions if you have in the chat box. She will be able to see them. But please be respectful and make sure your questions are respectful and relevant as well. If you can hear me, can you please give a brief introduction about yourself to our interns? Am I audible? Yeah, you are audible. I'm sorry. No issues. Okay, so hello everyone. I hope everyone is doing great. सबसे पहले तो thank you so much Umair for inviting me to this session. I'm very grateful to be part of this today. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. आप लोगों सबने ये सेशन ज्वाइन किया, थोड़ा बहुत मेरा इंट्रोडक्शन करा होगा. आई एम बशुरी, ठीक है. So I am currently studying at IIM in a third year. Recently completed. I'm from BBA, doing my majors in marketing. तो मेरा जो target है वो mostly marketing field से. Plus I am working with a digital marketing agency currently. So yeah, that's pretty much my introduction. Okay. So एक बहुत important question है, and a lot of interns also want to know that how has been your journey from. Can you hear me now? Am I audible? Is it the issue with me, or anyone can please confirm in the chat? Please confirm in the chat box. I think my voice is all right. Yeah, it's perfect. It's perfect. Yeah, now I can hear you. Can you please Okay, all right. say it again? Okay, so yeah, I was saying that this is a journey from intern and then going towards a professional role of working and also managing things. So can you please share your journey after the internship? How it's been like going from an intern, becoming from an intern, and then working as a professional? Okay, so Raheel, I would like to mention हमारे पास बहुत सारे interns यहाँ पे मौजूद होंगे और भी students मौजूद होंगे as a representative for all session. So it was never easy, ठीक है. I joined as an intern last year with your academy. जिस तरह से आप लोगों ने आज join किया, इसी तरह से last year I was at your place. Today, alhamdulillah, I'm part of this guest speaker session. हो सकता है आप लोगों में से भी इंशाल्लाह next year या उसके बाद कभी guest speaker session का part हो. So I would like to mention कि जब मैंने someone is saying I'm not audible. Rohil, can you hear me? Yeah, I can hear you. I can hear you. Okay, तो I was saying कि जब मैंने अपनी इंटर्नशिप ठीक है ज्वाइन की, इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस. सोचा नहीं था कि भाई ऑनलाइन इंटर्नशिप्स भी इतनी ज़्यादा अच्छी हो सकती. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला. उसके बाद आई got the certificate and started applying for different jobs. So one fine day, there I saw this posting from a digital marketing agency where they needed someone who had that digital experience and digital up-to-date knowledge. So I applied and got selected, thankfully, and it's been 8 to 9 months I'm associated with that digital marketing agency and still working with them. So yeah, that was my journey from intern to current. That's amazing. That's truly amazing. I think the start is really difficult, and if you manage to start well, then you are able to handle things really well. So that is Exactly. really amazing. Yeah.
ओके सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट बहुत सारे इंटर्न्स को भी और डेफिनेटली जो लोग हमारे साथ कॉन्टैक्ट में भी होते हैं उनको भी ये सवाल रहता है कि how is the internship advice, like how is the internship experience really helping you towards your current job or working as a professional? How is the internship experience helping you? ओके सो होता क्या है रोहित, यू ऑल्सो नो आई ऑल्सो नो कि जब हम कहीं अप्लाई करते हैं तो वी आर ऑलवेज आस्क फॉर एक्सपीरियंस कि भाई आपकी सीवी में क्या है, आपने क्या काम किया है, क्या एक्सपीरियंस है। तो मेरे साथ भी यही था, सीवी में कुछ था नहीं, सीवी बिल्कुल खाली होती थी। कहीं अप्लाई करो तो ऐसा लगता था यार हम बहुत पीछे हैं, सब बहुत आगे निकल गए, कुछ आता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सबके जहन में क्वेश्चन होते हैं जब आप न्यूली बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो आपको लगता है कि यार किस तरह से चीज़ें चल रही हैं और कैसे लोग जॉब्स कर रहे हैं, किस तरह से उनको ये चीज़ें मिल रही है। तो मुझे भी ऐसे ही लगता था। देन क्या हुआ कि इंटर्नशिप की पोस्टिंग मैंने देखी, मैंने अप्लाई किया, इंटर्नशिप बहुत अच्छी थे। उसके बाद जब सर्टिफिकेट ऐड हुआ मेरी सीवी के अंदर और एक एक्सपीरियंस आ गया, फिर खुद को भी कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ अब मुझे कुछ आता है। जब कुछ आता होता है आपको तो फिर आप उस हिसाब से उसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं। फिर जब मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया तो उस सर्टिफिकेट ने पर्टिकुलर मुझे बड़ा हेल्प किया, बिकॉज प्रोग्राम इतना ज़बरदस्त था क्योंकि हमने बहुत डाइवर्स चीज़ें इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में सीखी। इट वाज अबाउट अमेज़न, इट वाज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, लिंक्डइन प्रोफाइल्स किस तरह से अपडेट कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें जब इतनी डाइवर्स सीखने को मिली है, नो एवरीथिंग इज गोइंग सो मच डिजिटल और सब इतना ऑटोमेट हो चुका है। मी ऑल्सो बीइंग फ्रॉम मार्केटिंग फील्ड आई कैन से कि सब चीज़ें इतना ज़्यादा डिजिटलाइज हो चुकी हैं कि आपको भी अपना सॉफ्टवेयर साथ साथ अपडेट करना पड़ता है। Right. यू एग्री राइट? Right. तो इसी तरह से जब मेरे पास स्किल सेट्स ऐड हुए तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। फिर जब मैंने डिफरेंट जगह अप्लाई करना शुरू किया तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होता है और उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई और फिर मैंने अपनी फर्स्ट जॉब सिक्योर की। अभी तक उनके साथ सोच रही थी तो एक बड़ी अच्छी जर्नी। Yeah. अच्छा इससे मुझे previous intern who joined us in the internship program, Ahmed, he's from IBM. He also got a job at a digital agency who is working in the field of e-commerce regarding Amazon and Walmart, wholesale drop shipping models. So that is really interesting, and we are really proud to know that our interns are shining everywhere. So okay, Yeah, that was moving very on. great. Yeah, definitely. So moving on to the next thing. Okay, so for now, what do you think? Like, कोई success की क्या कोई tips है या कोई ऐसी trigger situation है कि what you can say कि for the interns, like current interns को क्या you will suggest? Like, what do you think is important for the success in this internship? अच्छा तो होता क्या है कि जो टिप्स मैं मोस्टली लोगों को खुद से जूनियर जब पूछते हैं मुझसे सवाल तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि अपॉर्चुनिटीज जो है ना उनको कभी मिस नहीं करना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी आपको जहाँ से भी मिले ना, छोटी अपॉर्चुनिटी हो बड़ी, उनको अवेल करो। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो कहते हैं कि भाई नहीं हमें इंटर्नशिप यहाँ नहीं करनी, हम तो किसी बड़ी कंपनी में करेंगे जाके। तो इस तरह से चीज़ें वर्क नहीं करती। व्हेन यू अप्लाई फॉर big companies, I like to mention I'm currently at the joining chance which is a marketing intern। तो बहुत जगह अप्लाई करने के बाद समवन कंसीडर्स यू और आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस काउंट होते हैं। तो सीखो, जितना सीख सकते हो सीखो, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करो और इन चीज़ों के पीछे नहीं जाओ कि भाई मैं यहाँ पे काम करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं इसको करूँगा। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम अवेलेबल है आपके पास। हम सेशन देखें अभी क्या टाइम हो रहा है, किस टाइम कितना फ्लेक्सिबल सेशन है। हमारे टाइम में इसी तरह से था, लास्ट ईयर जब मैंने इंटर्नशिप की तो इतने फ्लेक्सिबल सेशन होते थे, कोई इशू ही नहीं होता था। हम लोग अपनी एकेडमिक जर्नी के साथ भी सेशंस ले रहे हैं, साथ में सीख भी रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। दूसरा ये है कि इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो आपको नेटवर्किंग का बहुत अच्छा मौका देती है। तो नेटवर्क बिल्ड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के दिन में। आपको यहाँ पे लिंक्डइन Right. प्रोफाइल्स ग्रो करना सिखाया जाएगा, आप वहाँ से अपने कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं। तो जब आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो, प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है और नेटवर्क आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत अच्छा एक कोट है कि भाई योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, तो बहुत ही ट्रू कोट है। हमारे साथ ऐसा होता है ना, जब हमने यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, हमने शुरू में प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू में, आई एम फ्रॉम बीबीए, तो हमारे प्रोजेक्ट्स मोस्टली क्या होते हैं कि मीटिंग्स करना, कंपनीज में जाना। तो शुरू में बहुत मसला होता था कि भाई कोई कनेक्शन ही नहीं है, किस तरह से डेवलप करें, किस तरह से जाएँ। तो देयर वाज दिस टीचर, तो मैंने कहा कि सर मेरा तो कनेक्शन ही नहीं है, मैं कैसे इंटरव्यू करूँ? तो सर ने कहा कि भाई कनेक्शन नहीं है तो बताओ।
लोगों से सोशलाइज करो, इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करो, ताकि एक आपके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस आता है। जब आप चीज़ें सीखते हो, जब आपके पास कुछ स्किल सेट्स होते हैं ना, तो खुद से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यू कैन डू थिंग्स। ये चीज़ें बिल्ड करो। Okay, okay. But specifically, like you have done this internship last year, where you were with us in the e-commerce internship program 2023. So specifically, like if we talk about this program, what do you think? Like, what is the goal, like in for the interns? कि ये वाली जो हमारी internship है, इसमें like you were, I remember you were a top performer in this internship. Okay, so like what things did you follow? And what suggestions do you have for the current interns? Like उनको क्या करना चाहिए कि they will be really, able to go through this internship program? So what I used to do was I used to very carefully listen to उसके बाद हमें recorded sessions पे request पे provide कर दिए जाते थे, तो हम उनको दोबारा से सुनते थे। कोई कंफ्यूजन होती थी तो मिस्टर साथ आई थिंक ही विल बी कंडक्टिंग इंटर्नशिप, उन्होंने हमारी इंटर्नशिप कंडक्ट की थी। ही वाज ऑल द टाइम अवेलेबल, व्हाट्सएप सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल था। हमें कोई कंफ्यूजन होती थी, वी यूज्ड टू टेक्स्ट हिम, वी यूज्ड टू क्लियर आवर कंफ्यूजन्स। तो बहुत ज़्यादा एक हमें हेल्प होती है इसके अंदर। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम। I think I would suggest you all to be part of this program and avail this opportunity. Yes, definitely. Yes, definitely. I think जो right time पे अगर आपको guidance मिल जाए तो that is really helpful. And also, Exactly. our team has been always working round the clock to facilitate the interns. So I think this is a great opportunity. Okay. So now let's come to another part. एक बहुत interesting part ये है कि हम students भी हैं and then we also want to work. So like how will we manage this? क्योंकि ये होता है कि यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं तो वहाँ पूरा पूरा दिन गुजर जाता है। सुबह से जा रहे हैं तो लाइक शाम को वी आर कमिंग होम। उसके बाद किस तरीके से काम करें एंड हाउ कैन वी लाइक मेंटेन अ स्टडी एंड एन एकेडमिक एंड वर्क बैलेंस। लाइक इफ समवन वांट्स टू वर्क सो वो किस तरीके से उसको बैलेंस करके चलेगा? अच्छा, ऐसा है कि आप लोग जैसे एकेडमिक जर्नी मेरी भी चल रही थी, उसके साथ साथ मैंने इंटर्नशिप भी मैनेज की, देन मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, अभी भी कर रही हूँ स्टिल। आई हैव क्लासेस ऑल द डे, तो वापस घर आके अपने काम को भी देखना होता है। तो ऐसा होता है कि आप लोग जो है वो पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ये इंटर्नशिप प्रोग्राम अगर आप देखें तो इंटर्नशिप प्रोग्राम को सुन के आपके माइंड में आता है कि यार कोई 9 to 5 पूरी जॉब होगी या टाइम बाउंड होगा। अगर 9 to 5 नहीं तो 5 to 9 होता है कि आप टाइम बाउंड होते हो, यू हैव टू बी अवेलेबल इस टाइम से इस टाइम तक, और आपको पूरा एक अपना फुल टाइम उस चीज़ में देना होता है। तो मैंने भी जब इंटर्नशिप ज्वाइन की तो मुझे लगा था कि यार शायद पूरा टाइम देना होगा तो मैं किस तरह से मैनेज कर पाऊंगी चीज़ों को, लेकिन इट वॉज सो फ्लेक्सिबल। टाइमिंग्स भी हमसे पूछ के डिसाइड की जाती थी और इस टाइम पे सेशन दिए जाते थे जब मोस्टली सब लोग फ्री होते हैं। तो इट नेवर बेसिकली इम्पैक्टेड माई एकेडमिक जर्नी, और बहुत बैलेंस्ड एक लाइफ साथ में चली। उसके बाद मैं अप्लाइड फॉर जॉब्स, तो जॉब भी आई वॉज डूइंग डिजिटली रिमोटली, क्योंकि हमारा काम इस तरह का था। सारी चीज़ हम लोग डिजिटल सीख रहे थे, डिजिटल सब कुछ डिजिटलाइज वैसे ही हो चुका है। एंड सारी चीज़ें आपकी ऑलमोस्ट लैपटॉप से मोबाइल से चल रही होती है, सो यू कैन डू मैनेज ऑल द थिंग्स टुगेदर। साथ में टाइम निकालें, पार्ट टाइम अपने आप को मोटिवेट करें, चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, एंड यू कैन इंश्योर। Yes, that's correct. Definitely, जो willingness है that is very important. If you are not willing to work, तो then you cannot, like balance तो फिर होगा ही नहीं. सही है। Yeah. Okay. One thing जो अभी एक चीज मेरे दिमाग में आई कि like how can we stay motivated? Like there has to be something that is always keeping you motivated, always keeping you driven to work. So what do you think? And being a designer, you always have to be creative. I really appreciate the designers. If there are any designers in attending the session, I really appreciate you guys because डिजाइनर जो होते हैं जो उसके लिए काफी ज्यादा क्रिएटिविटी चाहिए होती है, न्यू आइडियाज चाहिए होते हैं। एंड आजकल आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि काफी ज्यादा कंपटीशन हो गया है। सो यू हैव टू स्टैंड आउट। उसके लिए आपको डिजाइन में भी अच्छा करना है और आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आपको जो है वो अच्छा करना होता है। सो लाइक व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? एक तो ये मैं चीज पूछना चाह रहा था। एंड सेकेंडली लाइक हाउ आर यू ऑलवेज कैचिंग अप विद योर क्रिएटिविटी? अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँगी, मैं सबको ये कहती हूँ कि देखो, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आप हमेशा आपके जो इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं होते। तो आई वुड नॉट से कि मैं 24 आवर्स पे ही बहुत क्रिएटिव होती हूँ और मेरे दिमाग में बस आइडियाज ही आ रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। थिंग्स डोंट वर्क आउट लाइक दिस। आपका सुबह मूड कुछ और होता है, रात को कुछ और होता है, आपकी फीलिंग्स भी इसी तरह काम करती है।
सो कभी कभी ऐसा होता है, मुझे कोई काम मिलता है तो आई एम लाइक कि यार नहीं दिल कर रहा, आई एम नॉट जस्ट फीलिंग लाइक माई ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग, बस नहीं आ रहा कोई आइडिया, नहीं दिल कर रहा अभी काम करने का। तो ऐसे टाइम पे ये है कि यार यू टेक ब्रेक्स, ठीक है, बैठ जाओ, घूमो फिरो, दोस्तों के साथ घूम के आओ, अपना फेवरेट काम कर लो, नेटफ्लिक्स देख लो, थोड़ी देर चिल करो, उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करो, दोबारा से अपने काम को टाइम दो। एंड मोटिवेशन के लिए व्हाट आई डू इज, जो मैंने अभी नेटवर्क की बात की ना, नेटवर्क बिल्डिंग इज सो मच इम्पोर्टेंट। उसके बहुत सारे प्रॉस हैं, कॉन्स तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन प्रॉस बहुत सारे हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक चीज़ ये भी कही जाती है कि भाई इंसान अपनी सोच से, तो आप जिस तरह बहुत ज्यादा motivation देते हैं, आपने देखा होगा, अगर आपको कोई दोस्त बड़ा लेजी सा है ना, वो हर जगह आपको बोलते हैं नहीं यार छोड़ो, बात नहीं करने को बैठ जाओ, ठीक है, तो आपके जो सर्कल होता है ना, वो भी आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो मैं क्या करती हूँ, आई एम एक्टिव ऑन लिंक्डइन एज वेल, तो मैं इस तरह के लोगों को फॉलो करती हूँ जिनसे मोटिवेशन मिलती है देख के, ठीक है। इस तरह के सेशंस जैसे आज आप अटेंड कर रहे हैं, मैं भी बहुत अटेंड करती हूँ, क्योंकि इंसान है, आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ता है, क्रिएटिव रखना पड़ता है, और जिस तरह की मेरी नेचर ऑफ जॉब है, तो क्रिएटिविटी चाहिए होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये चीज़ें होती है, जॉब फॉरवर्ड करें तो इंशाल्लाह आप भी मोटिवेटेड रहेंगे। Hopefully, inshallah. मैं भी यही होप करूंगा for everyone. Okay, अच्छा, like if some, but there's very another important question. Like अगर students जो है वो काम करना चाहते हैं, like someone also wants to join digital marketing agency या कोई digital marketing की field में interested है. In fact, can anyone let me know the chat box if there is anyone who is really interested in working in the field of digital marketing? कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो प्लीज चैट बॉक्स में। Yeah. Yes, okay, here we have people who are really interested in working in the field of digital marketing. ओके So, जी, like, देयर जैसे आर पीपल। you, yeah, जैसे you are working at a digital marketing agency. So, like, अगर स्टूडेंट है कोई, कॉलेज ए लेवल्स का है, इंटर का है या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, सो लाइक उसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए, लाइक व्हाट पाथ should he or she follow in order to get a position at a digital marketing agency, या वो अपनी खुद की अगर एजेंसी बनाना चाहे, so what path do you think he or she should follow? ओके सो अगर कोई इंटरेस्टेड है रियली, फरीद इज सेइंग आई विल बट डू नॉट नो अबाउट इट, ओके फरीद नो प्रॉब्लम, ठीक है, हमें भी एक टाइम पे बिल्कुल कुछ नहीं पता था किस तरह से चीज़ें चलती हैं, तो जब आप लोगों से मिलते हो, देखते हो, प्रोग्राम्स अटेंड करते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो चीज़ें पता चलना शुरू हो जाती हैं। So what you can do is there are a lot of programs. UR Academy, I think, also offers a digital marketing program. You can do their course. Okay, you can contact them. You can join their course. उसके अलावा अगर स्पेसिफिकली कोई डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट योर अकेडमी, दे विल कनेक्ट टू मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए हो, मैं आप लोग हेल्प कर सकती हूँ, बेसिक डिज़ाइनिंग स्किल्स के अंदर आप वो भी सीख सकते हैं, ठीक है। आप आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू करें उस चीज़ को, पहले खुद से अप्लाई करना स्टार्ट करें, देन इंशाल्लाह यू कैन मूव ऑन टू क्रिएटिंग योर ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। सो थिंग्स आर नॉट टू डिफिकल्ट, यू जस्ट नीड टू टेक द राइट स्टेप। आप स्टार्ट करें एंड इंशाल्लाह यू कैन डू वेरी गुड। Yeah, yeah, mostly I think smart work जो है that is very important. Say ना, so एग्जैक्टली, like if you also learn it smartly, बहुत ज्यादा लर्न करने की एग्जैक्टली, जरूरत नहीं है कि आप बार बार एक ही चीज को देख रहे हो, हाँ, लर्न स्मार्टली एंड नो कि आपने क्या चीज सीखनी है, लाइक द पाथवे शुड बी क्लियर, लाइक इफ यू वांट टू वर्क एज अ डिजिटल मार्केटर तो आपका पाथवे क्लियर होना चाहिए, यू मस्ट नो कि मुझे ये चीज करनी है, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इज एक्चुअली वेरी वास्ट फील्ड, बट that was just for the sake of example. Okay, now since Miss Hiba is with us, let me show you some of her work. Her work as a designer. So is there anything you would like to tell us about the work that you've done recently? so these were some of my clients. The first post you are seeing is of this room. This was for their award ceremony. Then the second one was for a digital marketing agency. Then these are some logos I designed. One was for a solar panel installation company. The second one is a Palestine United Students Society. The third one is another for a digital marketing agency. Yeah.
these are some company portfolios. You can see one of those are UR Academy. So यहीं से सीखने के बाद then I also made a company portfolio for UR Academy as well. Then there is for Which Online and SFB Digital. Also, these are just a few of them. These are very, very few of them. Yeah, she has done a lot of work. I cannot even count how much I have made. Yeah, even if you look at these portfolios are amazing. Like portfolios जो है वो इतने detailed में और comprehensive portfolios हैं. So if anyone wants to see, they can reach me out. We will definitely let you know. And for guidance, you can always contact her. We also have mentioned some of her contact information. Anytime, yes. Okay, so let's take a query session now. Is there anything more that you want to say? अच्छा, एक चीज मैं बिल्कुल ऐड करना चाहूँगी. मैं सबको ये चीज कहती हूँ कि आपका जो वाई है ना, सो आपने अभी बात की कि यू शुड नो के स्मार्ट स्टेप लेना है और कहाँ से लेना है. तो आपकी लाइफ में जो आपका वाई है ना, दैट शुड बी वेरी क्लियर. जो बात है ना वो बहुत क्लियर होना चाहिए. वट एवर यू आर डूइंग यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि आप क्या कर रहे हैं लाइफ के अंदर. एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है जब हम यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं या कहीं भी जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने बीबीए किया है, तो टीचर हमसे पूछते हैं क्लास में आके भाई वाई बीबीए. तो स्टूडेंट्स ब्लैंक होते हैं, तो कुछ नहीं पता होता कि क्यों आए. बस दे कैंट इवन आंसर दीज क्वेश्चंस. आप मैंने इतनी कंपनीज में इंटरव्यूज दिए, तो जब आप वहाँ जाते हो कहते हैं भाई वाई आर कंपनी. सो ये जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए. जब आप खुद कॉन्फिडेंट होते हो, आप खुद क्लियर होते हो ना अपने पाथ के बारे में, तो उतनी बेहतर आप आगे. मैं कहती हूँ कि भाई आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन, इससे पहले ही कोई और पूछे. तो अपने आप से क्वेश्चंस पूछो और अपना अपना वाई जो है ना लाइफ के अंदर. इट कुड बी एनीथिंग. नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. इट कुड बी एनीथिंग, बट कीप इट वेरी क्लियर इन योर लाइफ. बहुत हेल्प करता है. Anyone wants to ask any question, please ask her. You can also contact her. So someone is asking, Siba, what is your idea about AI designing? Okay, so AI designing के बारे में भाई मैंने आजकल बहुत लोग सुनते हैं, कहते हैं कि भाई एआई तो सब कुछ कर रहा है, एआई जॉब्स खा जाएगा और एआई बस इट विल टेक ओवर द वर्ल्ड और सब भाई ऑटोमेट हो जाएगा और सारी हमारी जॉब्स चली जाएंगी. तो ऐसा नहीं है भाई, प्लीज मेक वेरी क्लियर. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता. क्योंकि एआई बनाने वाले खुद हम ह्यूमन से, और एआई उन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं जो हम उसमें फीड करते हैं. ठीक है, तो जब तक आप उसको कमांड कर रहे हो, एआई भी तब तक काम कर रहा है. और अगर आप इमेज डिजाइनिंग की बात कर रहे हो तो यू कैन ट्राई इट. आप जाएं और एआई से इमेज क्रिएट करके देखें. इट कैन नॉट मेक दैट लेवल ऑफ इमेजेस जो कि ह्यूमन ब्रेन सोच के बता सकता है. इट्स अभी बहुत पीछे, अभी इसको कंपेयर नहीं कर सकते. Should we say about our experience as a beginner? ये आप ना, कैन यू प्लीज क्लैरिफाई कहाँ पर पूछ रही हैं आप, मतलब इन योर सीवी और so you have skills in digital marketing, so you can mention. आप अपनी सीवी में स्किल्स का सेक्शन होता है, आप स्किल्स का सेक्शन यू कैन मेंशन योर हार्ड स्किल्स, यू कैन मेंशन योर सॉफ्ट स्किल्स. जितनी चीज़ें आपके पास हैं यू कैन मेंशन, यू कैन टेल. देखो आपको आप खुद के बारे में इंसान को अपने से ज़्यादा कोई और नहीं जानता. ठीक है, आपके बारे में सबसे ज़्यादा आप ही जानती हो, मैं नहीं जान सकती. सो यू नीड टू सेल योर सेल्फ, यू नीड टू सेल वट एवर यू नो. आपको जितना कुछ भी पता है, वट एवर यू नो, वट एवर यू कैन डू, यू नीड टू नो हाउ टू सेल योर सेल्फ. दैट इज ऑल्सो एन आर्ट. आपके पास अगर डिजिटल मार्केटिंग में स्किल्स है, दैट इज वेरी गुड. और स्किल सेट्स होते हैं जो आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं जब आप अप्लाई करते हो. बहुत सारी सीवीज जाती हैं और छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस सबके पास होते हैं, बट जो स्किल सेट्स होते हैं ना, वो बेसिक चीज़ हैं जो आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं मार्केट के अंदर. स्किल सेट्स इज समथिंग दैट विल नेवर लीव यू डिपेंडेंट ऑन एनीवन. तो स्किल्स अगर आपके पास है तो कहीं ना कहीं से आप कुछ ना कुछ कर. Exactly, and that's for an internship. The main purpose of an internship is that कि जो है you guys also have that skill set भी हो and experience भी साथ में मिल जाए.
So that is a very plus point. Exactly. Okay, so if there's any more question, please ask. Anyone having a question, I think you can ask. Also, if you guys want to contact us, then you can definitely contact us as well regarding anything, regarding our internship program or any other thing, any other course or any other guidance, then you are always welcome. Okay, Mr. Saad wants to speak. We have very few minutes left for the session. So, Mr. Saad, you can speak. You can speak. If you can hear me, yeah. Hello everyone. I hope you are doing well. And thank you, Siva, for being a part of this program. And yes, for a teacher, it's always a proud moment for us when your students and your interns are achieving big in their life and making wonders in their life, and doing different kind of internships and taking their life and their career seriously and actively participating in different kind of programs. So जैसे आपने बात करी, like you should define your why. Your why is very important because if your why is powerful, your how becomes easy. And your why, what basically is your why? Your why is the reason why you're starting. So always remember, whenever you are thinking of falling off, you should always remember why you started this, because you have to think about the external stakeholders around you. You have to think about yourself. So define your why, make sure it's powerful. So that's the biggest motivation you should always have. So एक तो ये बात होगी कि अपने वाई को पावरफुल करो, ताकि आपका हाउ जो है कि किस तरह होगा, कुछ स्टेप्स क्या होंगे, किसकी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, तो वो आपका इजी हो जाएगा. यू शुड फर्स्ट फोकस ऑन योर माइंडसेट. जस्ट मेक योर माइंडसेट प्रिसाइज एंड मेक इट क्लियर एंड कंफर्ट. लेकिन जब आपका क्लियर होगा, तब जाके आपका जो है वो हाउ भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है रास्ते बनाता है, और फिर वो इवेंचुअली ईजी हो जाता है. एंड सेकेंडली ये है कि जो लिंक्डइन की बात हमने प्रीवियसली हम लोग करते आए हैं अपने प्रोग्राम्स में, LinkedIn has a lot of significance, and we have seen interns, getting jobs and getting clients and getting business from LinkedIn. And I've myself gotten a lot of clients and projects from LinkedIn. So जो लोग मेरी pieces of advice को जो है वो seriously ले रहे हैं, so you guys they are going well. और जो लोग नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज वी लाइक टू रिक्वेस्ट कि अपनी अपनी सर्विसेज को सेल करें वहां जाके, अपनी चीज़ों को जो है प्रोमिनेंट करें और मार्केट में जो है इन हो, ताकि लोग आपको जो है आइडेंटिफाई रिकग्नाइज करना शुरू करें. बिकॉज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. यू हैव टू ओवर सेल योर सेल्फ, यू हैव टू बी इन द मार्केट, यू हैव टू शो पीपल दैट व्हाट यू आर ऑफ. तो आपको अपनी कैपेबिलिटी शो करनी है. और जो सेशंस हम कंडक्ट करें, ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं, इसको आप लोग सीरियसली लें. और हम हमारे जो असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, इसको जो है इसकी जो है क्वेरीज वगैरह है, इसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और इसको जो है सारे प्रोजेक्ट्स को फुलफिल करें. बिकॉज ये जो है स्मॉल स्टेप्स एंड दैट लीड्स टू बिगर डेस्टिनेशन. तो ये स्मॉल स्टेप्स आप लेंगे तो आपकी इवेंचुअली जो है अल्टीमेटली आप अपनी जो है गोल को इंशाल्लाह रीच करेंगे. सो दैट इज ऑल फॉर